Welcome. In this video, we'll learn about the conversion of electrical energy, which will help you solve some questions in the OJEE exam. So, a motor. So, motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy. Means the input is electrical, output is mechanical. And motor is based on the principle Fleming's left-hand rule. Means by the Fleming's left-hand rule, we can easily find out the direction of the motor, means the direction of the rotation of the motor and the current direction and the field direction in Fleming's left-hand rule. Similarly, in case of a generator is a device which converts your mechanical energy into electrical energy. Means the input is mechanical, output is electrical. And the direction of the generator, current and the field and the rotation can be given by Fleming's right-hand rule. Very important. Fleming's left-hand rule is for motor and Fleming's right-hand rule is for generator. In the next slide, I will explain you what is this left-hand rule and what is this right-hand rule suggest. Whether it is your motor or generator for DC, the construction of machine is remains same. Means machine रा जो construction अच्छी DC machine रा generator हो कि motor हो तारा construction exactly same. But AC machine आउ DC machine भितरे easily हमें तार construction रो easily जना पड़ जियो. DC रा कौन है त्यो DC रे तमारा commutator यूज हबो. सो कम्यूटेटर काम कौन से नेक्स्ट स्लाइड रे आगु बुझे देवी भल से जो कंस्ट्रक्शन पढ़ेबी डीसी मशीन रो क्लियरली बुझा पड़ेला. सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. सो द डायरेक्शन ऑफ द lines of flux will be such that from north to south. So if this is your Fleming's right hand rule, so right hand rule is for generator. So this is your thumb, first finger and second finger. So the angle between first finger and second finger and third finger, that is the both the means both this angle, this is 90 degree, this is 90 degree, means all these three fingers are perpendicular to each other. Okay. So if this first finger gives you the direction of the flux, this is the direction of the flux from north to south. Then the direction of your thumb is your motion, means the conductor rotation is such that this is the direction of the motion, and then the second finger direction will give you the induced EMF current. So there will be EMF induced and the direction of the induced current, means the direction of the current is this second finger. And now comes to left hand rule. In left hand rule, similar to this, but except this, if the direction of the current is this middle finger, then the motor direction is like this. Means generator कौन होता हमारा induced EMF generation होची जोड़ा कि तारा direction देखो ची कोड़ा middle finger टा and इट तमरा कौन होची तमरा same as usual तमरा lines of flux रहेला and direction of the current हमें इड़ा दबा direction of current हमें motor direct current दौचे supply दौचे and हमें rotation पाउचे. So rotation हमारा कोड़ा वो thumb तमरा वो rotation direction of the motion, means जो direction से तुम्हारा मोटर टा रन करियो. Next, the operation principle. So basically the operation principle are based on electromagnetic laws. So these are some laws and this law will help you to solve some numerical problems in the exam. So these are very important point. So when the magnetic flux linking a conductor or coil changes, an EMF is induced and whose magnitude is given by E equal to N d phi by dt. So this law is nothing but your Faraday's laws of electromagnetic induction. Means whenever an conductor cuts across a magnetic field, means suppose let us take a magnetic field is there from north to south, there will be lines of force or lines of magnetic lines, and if a conductor rotates in this
lines of magnetic flux, then this line will cut. So whenever the line cuts, an EMF is induced, and the magnitude of that EMF induced can be given by this formula, that is E equal to N into d phi by dt. So what is this N and d phi by dt and this small e? This small is the EMF induced in this EMF, and this N is the number of turns in the coil or in the conductor or in your armature, and d phi by dt the rate of change of flux. D phi is the flux, dt t the change in current. So change in flux to change in current, that is rate of change of flux. D phi by dt the rate of change of flux. So in this equation we normally use a negative sign before this equation, that is minus n into d phi by dt. So this negative sign indicates Lenz's law, which says that the direction of this current in EMF induced, जो EMF टा induce होला, से EMF रो जो EMF माने कौन? EMF is nothing but the electromotive force. You can compare this with a voltage supply or voltage source. So voltage source जदि अच्छी उड़े, suppose voltage source हम उड़ना बा positive and negative. voltage source को हम जितना उड़े circuit रे गोटे बल्ब हो बा जेकोसी लोड गोटे कनेक्ट करिया. लोड माने कौन? जेकोसी बल्ब हो, फैन हो, लाइट हो, रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, ये सब आम लोड कह कौन कह लोड कहवा. सो जेकोसी गोटे लोड जदि आम कनेक्ट करिया कौन हम ए करेन्टा फ्लो हम. सो ए जो करेन्ट डायरेक्शन कौन हम पॉजिटिव रो नेगेटिव रू जाऊँगी. यहाँ नॉर्मली तुम जानते मैंने हायर पोटेंशियल रो लोअर पोटेंशियल को जाऊँगी. सो ए जो नेगेटिव साइन टा इंडिकेट कर कौन लेंजेस लॉ कौन लेंजेस लॉ. सो लेंजेस लॉ रो आ डायरेक्शन आम जापर. सो माइनस साइन टा अच्छी कम ना लेंजेस लॉ कौन कौन द डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस ईएमएफ करेंट माने जो इंड्यूस ईएमएफ है वोल्ट ईएमएफ माने कौन बैटरी वोल्टेज को आम सप्लाई देदेबा. सप्लाई सहित आम जब कनेक्ट करिया कौन करिया लोड उड़ी देवा कहले से थ्रू करेंट फ्लो हम. सो ईएमएफ अच्छी माने निहाती करेंट फ्लो हम. सो जो करेंट डायरेक्शन कौन हम जो रीजन जो ये जो ईएमएफ टा प्रोड्यूस है से रीजन को ऑलवेज अपोज करिवो. सो इट अपोजेस द वेरी कॉज व्हिच प्रोड्यूसिंग इट. तो तुम लेंजेस लॉ डेफिनेशन देखियो से लिखाई थी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ करंट सच दैट it opposes the very cause which producing it. means जो रीजन जो ईएमएफ रो प्रोड्यूस है ए ईएमएफ रो करंट जो अच्छी से करंट ऑलवेज अपोजिट टू द जो रीजन जो प्रोड्यूस है से करंट डायरेक्शन दा रीजन रो अपोजिट रे फ्लो हम. बुझीला. सो नेक्स्ट one more important. When a current carrying conductor of length L meter is placed at right angles to a uniform magnetic field of flux density B. B is the flux density. Means flux density is what? B. Flux density is nothing but flux per area. Flux per area. So our unit कौन हम? Flux रे unit आमे जाने Weber and a area रे unit कौन मीटर स्क्वायर. सो वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला unit of flux density, flux per area. Okay. So the conductor experience a mechanical force whose magnitude is given by F equal to BIL. So F equal to BIL into actually sin theta, but the right angle रची. So sin 90 के तब sin 90 तुम्हारा 1. So sin 90 multiply कोलेडी 1 ही आसी हो तो sin 90 मोड़ी लिखनी sin जेतु right angle रची. So F equal to BI into L. So B कौन F कौन I कौन L कौन. F was the force in Newton रे आसी हो. force रे unit कौन Newton. So B होची flux density Weber per meter square or Tesla. I is the current in ampere and L is the length of the conductor in meter. Very important in meter. So तमर जदि लेंथ रा तमर mm रे देथियो नले किलोमीटर रे देथियो गल ताको तमे मीटर रे कन्वर्ट करियो. बुझियला. Next, one more important formula for DC machine, whether it is a generator or motor. Generally the winding distributed winding slots circumference. So construction picture से details important नहीं. So next slide रे मु तार construction ऊपर जोड़ा important अछि मु सेटा कहि देबी. So each conductor lies at right angles. The magnetic flux and the direction of its movement. Therefore induced EMF जो अछि
that can be given by E equal to B into L into V. BLV volts, this much of voltage will induce. So E equal to BLV into actually sin theta, but जेहेतु एटा कोन राइट एंगल रो अछि, so right angle रो sin 90 degree केते हो, sin 90 degree तमरो 1, so multiply by 1 will be like same E equal to BLV. So B is the flux density, L is the length in meter square, V this V is not voltage, this V is your velocity of the conductor जो movement करती तारा velocity in meter per second. So this formula is important. So all these three formulas are important for exam point of view to solve some numericals. I will guarantee you will get 1 or 2 questions from these three equations. E equal to nd5 by dt, F equal to BIL, and E equal to BLV. Next we will see some construction features of DC machine. So we have the poles, and basically we are construction means overall the frame अच्छी तमरा next pole अच्छी mechanical अच्छी mechanical construction and commutator armature आ विषय डिटेल्स मु सेते कहया जाउनी मेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स खाली कहि देबी. तो तमरा वाइंडिंग अच्छी ठीक अछि, योक जो अछि कोडा योकटा तमर जे आउटसाइड कवरटा अछि तमरा आउटसाइड रो अछि जोडा सेटा योक जोडी तमरा वाइंडिंग सब अच्छी पोल अच्छी पोल्स अच्छी पोल कौन पोल फील्ड वाइंडिंग रहियो ठीक अछि, नॉर्थ पोल साउथ पोल अच्छी एंड पोल सब बळे ऑलवेज पेयर रहियो. पेयर माने कौन 2 रे रहियो, पोल सब बळे कौन 2 4 6 एवडा पेयर नंबर ऑफ पेयर. नॉर्थ पोल अच्छी कहले सेठी नेट साउथ पोल थिबो तो पोल सब बळे पेयर रहियो. नेक्स्ट रहला फील्ड वाइंडिंग. सो फील्ड वाइंडिंग रे तमरा एडी पोल रे म फील्ड वाइंडिंग रा एडी थिबो ठीक अछि. नेक्स्ट रहला आर्मेचर. दिस आर्मेचर पॉइंट इज इंपोर्टेंट. आर्मेचर कोडा जोडा कि रोटेशन करबा तमरा ए पार्ट होछि एडा तमरा आर्मेचर. तो देखि पारियो एडा को हमें कहया आर्मेचर. आर्मेचर रोटेटिंग पार्ट को हमें कहया आर्मेचर कहबे. सो आर्मेचर फील्ड अछि तो देखि पारियो एडी आर्मेचर फील्ड अछि प्लस ए भीतर देखो एडा जो अछि एडा फील्ड वाइंडिंग अछि, एडा होछि तमरा फील्ड वाइंडिंग आ एडा आर्मेचर. आर्मेचर ता सहित देखि पारियो ए पार्ट अछि, ए जो पार्टटा एडा तमरा कम्यूटेटर, एडा होछि कम्यूटेटर. तो आर्मेचर पर लगी कम्यूटेटर वेरी वेरी इंपोर्टेंट. तो कम्यूटेटर को आम देखिए जापर कि यहाँ एसी मशीन कि डीसी मशीन. जदि कम्यूटेटर अच्छी कम्यूटेटर इज देयर देन इट इज डीसी मशीन. जदि कम्यूटेटर ना तुम से एसी मशीन हम. तो कम्यूटेटर काम कौन मु बुझेदेवी. सो नेक्स्ट होची आर्मेचर. आर्मेचर है कौन रोटेटिंग पार्ट है आर्मेचर. तो आर्मेचर जो वाइंडिंग अच्छी से वाइंडिंग दीटा टाइप वाइंडिंग अच्छी तुम गोटे अच्छी लैप वाइंडिंग आ गोटे वेव वाइंडिंग. गोटे है लैप वाइंडिंग आ गोटे वेव वाइंडिंग. लैप वाइंडिंग कौन वेव वाइंडिंग कौन. तो वाइंडिंग रो जो पैरेलल पाथ अच्छी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ अच्छी. लैप वाइंडिंग रो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स दैट इज ए मीन्स नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू पी. पी कौन पी होची नंबर ऑफ पोल्स. तो नंबर ऑफ पोल्स सहित नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कोडी लैप वाइंड रहिबो. एंड लैप वाइंड रो वन मोर इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखो. लैप वाइंडिंग जो अछि लैप वाइंड बा लैप वाइंडिंग जो अछि लैप वाइंडिंग रे तमरा कोन यूज हबो ना हाई करंट एंड लो वोल्टेज रे आमे लैप वाइंड यूज करबा. सो लैप वाइंड टा कोड यूज करिया जदि हमको हाई करंट लो वोल्टेज दरकार आमे वाइंडिंग रे कोन करिया लैप वाइंडिंग यूज करिया. आ वेव वाइंडिंग टा कोड यूज करिया. वेव वाइंडिंग आम यूज करिया हाई वोल्टेज लो करंट. हाई वोल्टेज लो करंट आम वेव वाइंडिंग यूज करिया. एंड वेव वाइंडिंग जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ अच्छी ए इक्वल टू ऑलवेज 2 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ. ए इक्वल टू ऑलवेज 2. ओके. सो आर्मेचर विषय बुझे पड़ेगा. नेक्स्ट होची कम्यूटेटर. सो कम्यूटेटर कौन अच्छी कम्यूटेटर होची तमरा एबे देखो डीसी मोटर अच्छी और डीसी जनरेटर अच्छी. सो मेनली जो प्रिंसिपल आमर कौन प्रिंसिपल आमर एसी रे ऑलवेज वर्क करियो. एसी रे ही प्रिंसिपल वर्क करियो. से फारेडेस लॉ कौन कहला जे whenever a conductor cuts across a magnetic field an EMF is induced means तो मैग्नेटिक जो लाइन्स ऑफ फोर्स अच्छी लाइन्स ऑफ फोर्स से कट होची. तो एसी रे कौन हम तुम से जो क्वांटिटी अच्छी मैग्नीट्यूड अच्छी कूड़ा फ्लक्सटा जो अच्छी फ्लक्स जो अच्छी वेरिएबल हम कहे तुम एसी रे. तो ऑलवेज कौन कर एसी रे ही ऑपरेटिंग कर. बट एसी रु डीसी रे कन्वर्ट करने फॉर डीसी जनरेटर कौन हम ना आउटपुट रे आम कौन ना डीसी
सप्लाई मिले कौन डीसी सप्लाई मिले बट एक्चुअली ये जो जनरेटर जोड़ा ईएमएफ टा इंड्यूस हो से ईएमएफ रो से ईएमएफ रो बिहेवियर कौन ना अल्टरनेटिंग इन नेचर मीन्स एसी एसी इन नेचर सो से एसी को डीसी रे कन्वर्ट करिया पे आमे कौन यूज करिया कम्यूटेटर यूज करिया कौन करिया कम्यूटेटर यूज करिया कम्यूटेटर आमे यूज करिया सो कम्यूटेटर काम कौन सी एसी रु डीसी रे कन्वर्ट करियो इन केस ऑफ डीसी जनरेटर रे एसी रु डीसी कला आउटपुट तुमको डीसी मिलला तो ताको आमे डीसी जनरेटर कहले सो सिमिलरली कौन होची डीसी मोटर कौन होची आमे डीसी मोटर आमे सप्लाई दबा कोड़ा डीसी सप्लाई ही दबा बट आर्मेचर जो अच्छी सी काम करियो कहीं एसी रे ही काम करियो सो तुम डीसी को एसी रे कन्वर्ट करियो किए कम्यूटेटर कन्वर्ट करी मोटर को दब सो कम्यूटेटर इज ऑल्सो नोन एज मेकानिकल रेक्टिफायर काम कौन एसी रु डीसी कन्वर्ट करियो सो ये एसी रु डीसी भी कन्वर्ट कर एज वेल एज डीसी रु एसी भी कन्वर्ट करुच्ची नेक्स्ट है ब्रश एंड ब्रश गियर सो ब्रश कौन ये तुम कार्बन ब्रश यूज होची सो कार्बन ब्रश यूज होगा जो से किसी ड्रप भी होची वोल्टेज रे किसी जो ईएमएफ जनरेट होची किसी वोल्टेज कौन होची ब्रश से भी ड्रप हो जाउची आमे सेटा ब्रश ड्रप कहवा तो जो इक्वेशन लिखी मु आगु बुझा पड़ जाए बियरिंग आम यूज करिया जेहेतु तुम ये रहा कौड़ा साफ्टा एटा साफ्टा ये जिनसा तुम बियरिंग जिनस बियरिंग कौन ये साफ्टा रहा साफ्टा तो रोटेट करार अच्छे ना साफ्टा रोटेटिंग करियो तो रोटेटिंग किन करियो गोटे बियरिंग सिस्टम रहा रोटेटिंग करियो तो तुम फैन देखिपार फैन रोटे बियरिंग टाइप अच्छी ठीक है से रोटेटिंग कर बियरिंग बेले जाम हो जाए कौन तुम साउंड आस डिफरेंट साउंड आस कर साउंड आस ना नहीं तो तुम से बियरिंग टाइप रोचे बियरिंग प्रॉब्लम जो थी से साउंड हरिका आस नेक्स्ट है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन सो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल अप्रोच सो दिस ईएमएफ in the induced EMF in the DC machine that can be given by E equal to ZNP 5 by 60A Zn into P into 5 divided by 60A. So where this Z is the same, this equation is same. P5 and Z by 60 or Zn P5 by 60A. I like this Zn P5 by 60A. So Z is the number of conductors and N is the speed in RPM, P is the number of poles, phi is the flux in Weber, 60 is a constant value, A is the number of parallel path. So this A equal to P for lap winding and A equal to 2 is for wave winding. I have already explained previously. So this is the equation E equal to Zn P5 60A. So तुम एग्जाम क्वेश्चन पचारि पारे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस एंड गिवन द वैल्यूज ए सब वैल्यू देगी तुम ईएमएफ पचारि पारे और ए कौन कौन वेरिएबल अच्छी ईएमएफ फाई पी एन जेड ए सब वैल्यू अच्छी सो ये वैल्यू जेकोसी वैल्यू दे न आउ अदर वैल्यू दे तुम कैलकुलेशन करा पड़ो ये सब लिखी देती मुझे तार कौन कौटा कौन एन हूँ स्पीड आरपीएम एन नंबर ऑफ कंडक्टर ए पैरेलल पाथ ओके फाई फ्लक्स ये सब ऑलरेडी मेंशन अच्छे नेक्स्ट विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन्स DC machine. So DC machine can be classified as a separately excited, self-excited. Again, self-excited classified into series shunt and compound. Again, compound is classified into short shunt and long shunt. So basically, we have a armature, whether it is a generator or a motor. For DC machine, it is same. Motor generator same. So one is armature and other is your field. So armature and field winding जो अच्छी आर्मेचर आ फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन जो टाइप रही धरी क्लासिफिकेशन कराई जदि आर्मेचर आ फील्ड वाइंडिंग जो सेपरेटली रही आम सेपरेटली एक्साइटेड कहया आदि आर्मेचरटा ठीक अच्छे आर्मेचर करेन्टा सेम फील्ड वाइंडिंग ही नब कहले तुम सेल्फ एक्साइटेड हम एगेन सेल्फ एक्साइटेड कौन अच्छी सीरीज शंट कंपाउंड सीरीज केत हम ए जो आर्मेचर सहित फील्ड वाइंडिंग जो सीरीज रे कनेक्ट हम सीरीज कहवा आ फील्ड वाइंड को आम कौन कर आर्मेचर सहित आम शंट रे कनेक्ट करिया मीन्स पैरेलल रे कनेक्ट करिया कहले आम ताको शंट मशीन कहवा सो शंट जनरेटर हो पारे मोटर भी हो पारे जदि मोटर हम मोटर जनरेटर कंपाउंड रे कौन हम कॉम्बिनेशन बोथ सीरीज आ शंट रे कॉम्बिनेशन थी लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट तो आम डायग्राम सर्किट डायग्राम देखिए यार डिटेल्स तुमको बुझा पड़ जाए क्लीयरली ओके सो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर मोटर भी सेम एक्जाक्टली हम खाली कौन हम मोटर तुम जनरेटर आउटसाइड रे करंट मिलूँ तुमको आउटपुट रे करंट आसूसी आ मोटर तुम करंटा भितर दब माने करंट आम दबा
सप्लाई दबा सप्लाई आम ये नवा जेनेटर रे सप्लाई दबा के मोटर रे ओके सो ये फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग आर सेपरेटली कनेक्टेड सो दिस इज योर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन सो एक्साइटेशन मीन्स व्हाट ए डीसी सप्लाई आम ये देछे एडा को हम एक्साइटेशन कहबा बुझिला सो वोल्टेज इक्वेशन रहयो देखो इक्वल VT प्लस ये देखो ये इक्वेशन कि मन रखियो ठीक है तो तुम कौन रहा देख आर्मेचर होगा लेट मी ड्रॉ द सर्किट आर्मेचर होगा एंड फील्ड वाइंडिंग किसी भी थाए सीरीज हो शंट हो था जोड़ा भी तो सेपरेटली आम देखा से कौन है सीरीज कौन शंट कौन सो नॉर्मल आम स्टैंडर्ड इक्वेशन देखा सो यहाँ सपोज यहाँ तुम कौन जेनेटर तो मीन्स आउटपुट तुम करंट मिलूँ सपोज आई ओके आई तो आर्मेचर कौन अच्छी आर्मेचर गोटे कॉइल अच्छी आर्मेचर कॉइल कौन आरए नहीं जावा आर्मेचर कॉइल रेजिस्टेंस को आरए नहीं जावा आरए इज आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड इजी इज द व्हाट इजी बा ई हूँ तुम ईएमएफ इंड्यूस हम आर्मेचर तो ईएमएफ इंड्यूस हम ना एंड टर्मिनाल रे बा आउटपुट रे टर्मिनाल रे हम वोल्टेज मिलियो केते भी मिलियो भी रा हूँ कौन टर्मिनाल वोल्टेज बा VT भी नहीं पारिया भी नबा बा VT भी नहीं पारिया सो ए जो टर्मिनाल रे वोल्टेज मिलियो फॉर एग्जांपल सपोज लेट अस एज्यूम जो जदि ये आरए अच्छी तो मुझे आगुरी कहती तुमको ऑलरेडी तो जदि गोटे रेजिस्टर अच्छी आउ से आई करंट फ्लो अच्छी आउ रेजिस्टर वैल्यू जदि आर अच्छी सो रेजिस्टर वोल्टेज किसी ड्रॉप हम एंड दैट वोल्टेज ड्रॉप कैन बी गिवन बाय द ओम्स लॉ फार्मूला V इक्वल टू व्हाट I इंटू आर सो multiply current with resistance you will get the voltage drop across this resistance so जेहेतु वाइंडिंग रे आर्मेचर वाइंडिंग रे किसी रेजिस्टेंस थी एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस आरए एंड ये जो आर्मेचर करंट फ्लो सपोज ए करंट आम नवा आईए फॉर कौन आर्मेचर करंट होचे आईए सो ये किसी वोल्टेज ड्रॉप हम केते ड्रॉप हम आईए इंटू आरए कौन वोल्टेज ड्रॉप हम कोड़ी आर्मेचर ड्रॉप हम सपोज आम आउटपुट रे सपोज आम दरकार मनर 200 वोल्टेज आउटपुट दरकार एग्जांपल को मुझे कहूँ केते दरकार 200 वोल्टेज सपोज दरकार केते 200 वोल्टेज सपोज आउटपुट रे दरकार 200 वोल्टेज दरकार सो ये केते जनरेट करिया दरकार ना ए 200 वोल्टेज सहित ए जो वोल्टेज ड्रॉपटा भी एक्स्ट्रा जनरेट करिया पड़े ना कहीं जदि ये किसी ड्रॉप हो आउटपुट कमी जाओ ना तो ये केते जनरेट करिया पड़ो सपोज ये आम वोल्टेज मन ड्रॉप हो जाऊँ तुम 20 वोल्टेज मन ड्रॉप हो जाऊँ 20 वोल्टेज एज्यूम कर 20 वोल्टेज मन ये ड्रॉप हो जाऊँ सो ये केते जनरेट करिया दरकार इजी केते हवा दरकार इजीला तुम केते हवा दरकार ना ए 200 प्लस 20 सो 220 हवा दरकार केते ना 220 वोल्टेज हवा दरकार सो आकु आगे आम जब इक्वेशन लिखा कौन हम इजी दैट इज योर जनरेट ईएमएफ ई बा इजी नहीं पारिया ई इक्वल कौन हम ना V दैट इज 200 प्लस 20 ना नहीं 220 केते हो 200 प्लस 20 सो V और VT प्लस कौन हम प्लस ड्रॉपटा IA इंटू RA ता सहित आम कौन करिया जदि ब्रश जेहेतु अच्छी दीटा ब्रश अच्छी आमर दीटा ब्रश अच्छी तो ब्रश ड्रॉप जब देती सपोज 1 वोल्टेज लेके मनर ब्रश ड्रॉप देला तो ब्रश ड्रॉप जब 1 वोल्ट देला टोटाल दीटा ब्रश आम अच्छी तो केते हम 2 वोल्ट हम 2 वोल्टेजटा प्लस ये आम एड करवा जदि ब्रश ड्रॉप देती ब्रश ड्रॉप देखिए से यूज कर एक्सट्रा ब्रश ड्रॉपटा ये एड कर ठीक है तो यहाँ है कौन इजी इक्वल टू V प्लस IA इंटू RA सो और E इक्वल कौन V प्लस IA इंटू RA बुझीगला E इक्वल कौन आसला V प्लस IA इंटू RA प्लस दिस ड्रॉप V बा VT नहीं पार बुझीगला और ये तुम KVL भी पुट कर ये KVL भी पुट कर इक्वेशन लिखिपार सेम इक्वेशन आसो नेक्स्ट आम देखिए शंट जेनेटर सो शंट जेनेटर कौन है जेनेटर जो अच्छी आर्मेचर सहित फील्ड वाइंडिंग कौन अच्छी शंट रे कनेक्ट अच्छी कहीं कनेक्ट अच्छी शंट रे कनेक्ट अच्छी सो ये जदि जेनेटर थिला मोटर जदि होता कौन करते साइन खाली माइनस यूज कले किसी असुविधा ना जस्ट नेगेटिव साइन यूज कले मोटर हो तो सेम इक्वेशन मन रखिपार प्लस साइन फॉर जेनेटर माइनस साइन फॉर मोटर शंट जेनेटर देख कौन हम शंट जेनेटर कौन हम ये जो वाइंडिंगटा कौन है शंट है मीन्स पैरेलल शंट मीन्स पैरेलल सो पैरेलल का सहित आर्मेचर सहित पैरेलल रहा एंड ये फील्ड वाइंडिंग तो ये जो ये अच्छी शंटा अच्छी ए साइड भी कल हम किसी असुविधा ना
है मु ड्र कर देखो यहाँ तुम आर्मेचर होगा आर्मेचर पर कौन फील्ड वाइंडा सीरीज पैरेलल रे कनेक्ट हे शंट रे कनेक्ट है ओके तो ये आम आउटपुट रे करंट मिलला एंड आउटपुट वोल्टेज टाइडा आउटपुट वोल्टेज भी हूँ आउटपुट वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज ये जो इजी जनरेट हे इजीटा जनरेट हे सेम इजी ये जो करंट आसला आमर आईए आर्मेचर करंट आसला किसी करंट कौन हम एपट जो आसला एपट आड़े किसी करंट पलैब दैट इज योर फील्ड करंट आई आई फील्ड करंट बाय शंट रे कनेक्ट होना शंट करंट सो आई एस एच शंट करंट आउ ये आम आई एल मनर नवा आई लोड करंट नवा सपोज लोड करंट नवा सो टोटल आर्मेचर करंट के आई ए इक्वल टू के ना जो शंट करंट प्लस आई एल लोड करंट आई एस एच plus this load current that is IL load current. So one important is equation तो already जाने कहीं E equal to V plus IRA. So main thing is तमें एज आर्मेचर करंट बाहर करियो आर्मेचर करंट एडी कौन अच्छी ना ISH प्लस IL लोड करंट तो तुमको देथियो कहीं लोड रे केते करंट आछि देथियो ISH शंट करंट आमे केन बाहर करिया एड आर करंट बाहर करिया अछि आर करंट बाहर करिया अछि कोडा ISH केन बाहर करिया ना वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस करंट फॉर्मूला कौन वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस तो आर वोल्टेज कोडा टर्मिनल वोल्टेज और रेजिस्टेंस कोडा आर रेजिस्टेंस कोडा देथियो तुमको RSH होच कोन शंट रेजिस्टेंस तो ISH कैलकुलेट करिए पुट करियो पुट कर तुम IA बाहर करिए आई आर वैल्यू एडी पुट करि पारियो फॉर इक्वेशन जनरेट EMF बुझीला नेक्स्ट होचे सीरीज रे कोन हबो एज फील्ड वाइंडिंग जस्ट आर्मेचर वाइंडिंग से तो फील्ड रे सीरीज रे जो तो एडी कोन हबो फील्ड वाइंडिंग जेतु सीरीज रे कनेक्ट हला तो यार ड्रॉपटा एडी आर्मेचर भी ड्रॉप हबो एडी एज सीरीज रे ड्रॉप हबो तीनटा ड्रॉप जस्ट ऐड कर दे आसीबो आ किछि डिफरेंस नहीं सेम एज यूजुअल प्रीवियस जहां से लॉन्ग शंट आउ शॉर्ट शंट लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट कौन ए जो वाइंडिंग अच्छी शंट वाइंडिंग अच्छी along the long connected means armature as well as तुम सीरीज फील्ड सहित जदि कनेक्टेड हम से लॉन्ग शंट कहवा एंड जदि जो शंट वाइंडिंग खाली आर्मेचर रही कहले आम कौन कह मन खाली एडी कनेक्ट करदा कहले कौन हम खाली शंट रे कौन आर्मेचर सहित कनेक्ट करले से तुम शॉर्ट शंट हो बुझीगला एंड जो सीरीजटा तो आर्मेचर सहित सीरीज रे कनेक्ट हो सीरीज फील्डटा बुझीगला सो यार भी इक्वेशन तुम लिखिपार किसी असुविधा ना इंपोर्टेंट होची तुम सीरीज आ शंट एग्जाम रे न्यूमेरिकल पचारि पारे नेक्स्ट एप्लिकेशनटा किसी बुझीबार ना एठी किसी बुझीबार ना ये तुम सब मन रखा पड़ो एप्लिकेशन गुड़ाक सो यहाँ तुम स्क्रीनशॉट नहीं पार स्क्रीनशॉट नहीं तुम मन रखिपार एप्लिकेशन गुड़ाक नेक्स्ट सिमिलर टू तुम जेनेरेटर डीसी मोटर भी एक्जाक्टली सेम खाली प्लस साइन जगह माइनस साइन यूज कर तुम सेम इक्वेशन आसो एक्सेप्ट से जेनेरेटेड EMF इजी जगह आम ये कौन लिखा इबी कौन बैक EMF आम मोटर रे बैक EMF आम यूज करचे सो बैक EMF विषय मुझे आगु बुझेदेवी नेक्स्ट रहा तुम सेम शंट सीरीज कंपाउंड लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट वोल्टेज इक्वेशन कौन हम V इक्वल टू हम सो ये इक्वेशन देख ये इक्वेशन जो मन रखुन बोले जोड़ा आर इक्वेशन आम कही सेम इक्वेशन मन रखिपार कौन इजी बा इजी जगह आम कौन इबी नवा सो मुझे कौन कही प्लस नहीं माइनस नहीं जी सो V माइनस IA इंटू RA आ माइनस V ब्रश ड्रप थी ब्रश ड्रप नहीं जो है V ब्रश है ब्रश ड्रप सो ये V जब बाहर करी कौन हम V जब बाहर करी एटा ये जो माइनस अच्छी ए माइनस जब एपट साइड नहीं कौन है प्लस हो बस सेम इक्वेशन तो ये अच्छे ना ठीक अच्छे तो प्रीवियस इक्वेशन जोड़ा मुझे कहली जस्ट माइनस साइन यूज करी तुम मोटर पर यूज कर बुझीगला सो बैक EMF कौन अच्छी तो एक्चुअली जो आम सप्लाई दौचे मोटरटा रोटेट कर तो सी किसी जेनेरेट कर जेनेरेट वोल्टेजटा एक्चुअली आउटपुट आमको दरकार ना कहीं आमर मोटरटा जेहेतु मोटरटा कौन आउटपुट आमको मेकानिकल आउटपुट दरकार ये जो जेनेरेट करदेला जोड़ा कि बैक EMF एक्चुअली कौन कहचे ना से जो जेनेरेट करदेला EMFटा से EMFटा कौन ताकू बैक टू ताकू ओवरकम करने से जो EMFटा हिट रे कन्वर्ट हो एंड दैट हिटा कन्वर्ट हो तुम अगेन मेकानिकल एनर्जी रे कन्वर्ट हो जाउछि बुझीगला नेक्स्ट हो स्टार्टर नेक्स्ट हो स्टार्टर
सो स्टार्टर आमर डीसी मोटर कौन पे यूज होची सो स्टार्टर एक्चुअली स्टार्टिंग रे कौन होची तमर जेहेतु हेवी करंट थाउची टू लिमिट दी स्टार्टिंग करंट आमर स्टार्टर यूज होची सो तुम तार इक्वेशन देखिए जापर से इक्वेशन रु तुम स्टार्टिंग करंट कौन पे हाई होची जापर यहाँ मुझे डिटेल्स एत कह चाहूनी सो स्टार्टिंग तुम कौन हो जेनेटर सॉरी डीसी मोटर रो कौन हो स्टार्टिंग रे तुम जो करंट अच्छी अधिक हो जाए अधिक करंट हेल्ले कौन हम आर्मेचर रेजिस्टेंस अच्छी आर ए वैल्यू इज वेरी वेरी लेस उस वैल्यू इज समथिंग लाइक 0.1 ओम 0.5 ओम ए टाइप वेरी लेस ओम था तुम आर्मेचर वाइंडिंग तो तुम स्टार्टिंग करंट आर्मेचर स्टार्टिंग करंट जब हाई हो कहले कौन हम तुम जो ये हिट हो ना आई स्क्वायर इंटू आर आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी तुम हिट फर्मुला कौन आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी ये जो हिट हम आर्मेचर वाइंडिंग जब करंट फ्लो हम निहत हिट हम कहीं रेजिस्टर अच्छी टाइम सहित मल्टीप्लाई कौन हम हिट हम तो हिटा अधिक हम तुम जदि आर्मेचर करंट हाई हो से जो आर्मेचर करंट को लिमिट करने कौन कराऊँगी आर्मेचर टाइप देख पार्छ ता सहित किसी सीरीज रे एक्स्ट्रा रेजिस्टर किसी ऐड कराई जाऊँगी एंड ए रेजिस्टर को कौन कराऊँगी धीरे धीरे स्टार्टिंग रू एडी था धीरे धीरे आम कट कट करी आम रेजिस्टर कट करदे कट कले फाइनाली तुम रेजिस्टेंस कमिज करंट बढ़ीज एंड नॉर्मली वर्क कर स्टार्टिंग जेहेतु मोटर रो कौन होची ना बैक ईएमएफ टा जीरो था कहीं ना बैक ईएमएफ रे इक्वेशन देखिपर बैक ईएमएफ रे इक्वेशन कौन सेम फॉर्मूला ईबी सॉरी ZnP5/60A ZnP5/60A सेम फॉर्मूला यूज कर ZnP5/60A सो n कौन स्पीड इन आरपीएम सो स्पीड स्टार्टिंग रे तो स्पीड तो किसी न जीरो थी तो जीरो जब पुट कर ईबी रो वैल्यू केते आसीयो जीरो आसीयो जब ईबी रो वैल्यू जीरो नब नेक्स्ट आम जो इक्वेशन थिला कोडा आमर जो इक्वेशन अच्छी प्रीवियस इक्वेशन देखो ये इक्वेशन रो जब मु आर्मेचर करंट बाहर करी आईए जो आर्मेचर करंट जब बाहर करी केते आसीयो आईए इक्वल कौन आसीयो V माइनस ईबी डिवाइड बाय आर आसीयो ठीक अच्छे ए ब्रश स्ट्रोक नेग्लेक्ट करा ठीक अच्छे सो V माइनस ईबी बाय आर आसला ना नहीं सो आर तो कम था एंड ईबी भी जीरो था तो कहले केते हम तुम मैक्सिमम वैल्यू आसीयो गोटे एग्जांपल नबा जो टर्मिनल वोल्टेज आम 200 माइनस ईबीटा तो जीरो सो 200 लिख दूँ सो 200 माइनस जीरो डिवाइड बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस मनर 0.1 अच्छी तो यार वैल्यू केते आसीयो 2000 आम्पियर सो 2000 आम्पियर आइला कहले तार हिटा केते हो आई रो स्क्वायर हो जाउछि ना आई स्क्वायर इंटू आर ए इंटू टी ना नहीं सो करंट स्क्वायर हो 2000 स्क्वायर हेले केते हो बुझी पाछ तो हाई अमाउंट ऑफ तमरो हीट प्रोड्यूस हम सो टू लिमिट दिस हाई अमाउंट ऑफ करंट वी आर यूजिंग दिस स्टार्टर बुझीगला ऑल्सो दिस स्टार्टर एनाबल्स यू टू सेफली तमरा मोटर को रन कर हेल्पफुल कर ओवरलोड एंड अंडरलोड रे भी प्रोटेक्शन कर सो दिस स्टार्टर इज यूज टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट एज वेल एज टू प्रोटेक्ट द डिवाइस मीन्स डिवाइस बिल कोड़ा मोटरटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट सब एग्जाम पचार सो 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट भर देखीदेव कि डायग्राम देखिए जना पड़े खाली पॉइंट अच्छे 3 पॉइंट स्टार्टर एटा 3 पॉइंट स्टार्टर लोड आउ फील्ड करंट एंड आर्मेचर फील्ड आर्मेचर एंड लोड 3टा पॉइंट है ये कौन अच्छी फील्ड है आर्मेचर है आउ न्यूट्रल लोड रोची एक्स्ट्रा गोटे पॉइंट रोची 4 पॉइंट स्टार्टर एप्लिकेशन फॉर डीसी मोटर एप्लिकेशन टेबुल तुम स्क्रीनशॉट नहीं मन रखी दियो इंपोर्टेंट एंड ये गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख स्पीड वर्सेस दिस इज एंगुलर स्पीड इज 2 पाई इंटू एन 2 पाई एन हूँ तुम एंगुलर स्पीड जी एंगुलर फ्रिक्वेंसी कहती 2 पाई एफ हूँ एंगुलर फ्रिक्वेंसी दिस इज एंगुलर स्पीड 2 पाई इंटू स्पीड 2 पाई एन तो स्पीड वर्सेस बा स्पीड भी नहीं पारे किसी असुविधा नहीं स्पीड वर्सेस टॉर्क रो एटा कैरेक्टरिस्टिक्स सो स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स देखिपार एटा सीरीज रो क्यूमुलेटिव एंड शंट ठीक है सीरीज ये सब अच्छे देखिपार निजे so the rest part I will give you in the next video. I will explain you the next part. So if you want to take it screenshot, you can take it. So I will explain you the rest part in the next part. So if you like it, give it a thumbs up and share among with your friends. Thank you.